اس کی کچھ خود اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ادا کیے بغیر وہ اللہ کے سامنے اگر جواب دینا چاہے تو جواب نہیں دے سکتا ہے۔ تو جو لوگ بھی ممبر پہ جا رہے ہیں، کہ جیسے کہ اس میں سے بعض خواتین کے نام دیے گئے کہ جو اس فریضے کو انجام دے رہی ہیں، سب سے پہلی بات ذاکری میں اور خطابت میں جو ہم کو سیکھنا چاہیے، اور اتفاق یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ممبر پہ آتے ہیں اور اہل ممبر ہیں وہ خود ہی سے سیکھ کر آتے ہیں۔ بہت کم ایسا ان کو استاد ملتا ہے، یا شاگرد بننے کا بہت کم لوگوں میں یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم کسی کی شاگردی کریں پھر ممبر پہ جانے کے بارے میں سوچیں، تاکہ ہمیں ممبر پہ جانے کا سلیقہ آ جائے۔ ورنہ گزشتہ دور میں ہم نے بہرحال یہ سنا ہے کہ جب مراثی پڑھے جاتے تھے تو ہر نیا جو آنے والا ہوتا تھا اس فیلڈ اور میدان میں وہ اپنا ایک استاد معین کرتا تھا، اور ان کے سامنے جا کر باقاعدہ اصلاح کیا کرتا تھا۔ پھر جب اصلاح مل جاتی تھی تو دھیرے دھیرے وہ قدم رکھتا تھا ممبر کے اوپر، اور بڑا فخر سے ان کو کہا جاتا تھا کہ فلاں کے شاگرد ہیں۔ یہ سب باتیں گزشتہ دور میں تھیں، لیکن اب اس وقت بہرحال ماحول بہت بدل گیا ہے، اور اس وقت ہر انسان پے در پے ہے، چاہے وہ خواتین میں ہو چاہے وہ مردوں میں ہو، کہ ممبر پہ قدم رکھیں اور اپنی باتوں کو عوام کے سامنے پیش کریں۔ ہمیں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینا ہے، چونکہ ہم کوئی زیادہ بڑے خطیب بھی نہیں ہیں اور نہ اس میں ہمارا زیادہ تجربہ ہے، لیکن کچھ باتیں جو ذہن میں ہیں وہ منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے لیے کارآمد اور مفید ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی ممبر پہ آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ طالبہ ہوں یا طالبات، وہ اپنی تیاری کے لیے اور آمادگی کے لیے کہ ہم مجلس کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے دو باتوں کو ضرور اس میں شامل کریں مجلس کی تیاری کے لیے، چاہے وہ محفل کی تیاری ہو چاہے وہ مجلس کی تیاری ہو، دو باتوں کو ضرور شامل کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم باقاعدہ کتابوں کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اپنے مطالعے کی ایک عادت ڈالیں، کتابوں کو خریدنے کی عادت ڈالیں۔ اب یہ بات آتی ہے کہ کتابیں کون سی پڑھی جائیں، چونکہ ہم سے کہا گیا کہ بہت مختصر آپ جو ہے ٹائم لیجئے گا، آپ لوگ کی مجلس بھی ہے، اور زیادہ زیادہ وقت جو ہے وہ جو مولانا صفی حیدر صاحب کو ملے اور ان سے آپ استفادہ کریے، اس لیے کہ کون کتابیں اپنے مطالعے میں آپ شامل کریے۔ بہت سے ایسے مصنفین گزرے ہیں کہ جن کو بہرحال اگر پڑھا جائے تو پڑھنے کے بعد دماغ کھل جاتا ہے اور انسان خود اس کے اندر فکر پیدا ہو جاتی ہے، جس میں سے ہم اگر نام لینا چاہیں تو ایک شہید مطہری مرتضیٰ مطہری کتابیں جن کی اردو میں آ چکی ہیں تو مکاتب میں موجود ہیں، اس وقت کافی بڑا ان کا جو ہے کلیکشن موجود ہے۔ اور کتاب کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ کتاب ہمارے یہاں تو عام طور سے ہوتا ہے کہ کتاب ہم ایک بار پڑھتے ہیں اور کوئی نوٹ لگایا، اس کے بعد اس نوٹ کو اپنے نوٹ بک پر منتقل کر لیا اور بات، لیکن کتاب پڑھنے میں کہ اگر کسی مفکر کی، جیسے سید مطارق نامیہ یا علامہ جوادی کی کتاب آپ پڑھ رہی ہیں، یا آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے، کسی کی بھی کتاب پڑھیں تو ایک بار اس کو پڑھنے پر اکتفا نہ کریں۔ ایک بار ہم نے آج پڑھ لیا، 6 مہینے کے بعد، سال بھر کے بعد اگر اس کو دوبارہ پڑھیں گے تو کچھ باتیں ہمیں پھر اور نئی معلوم ہوں گی، اس لیے کہ ہمارا تجربہ یا ہماری عقل یا ہمارا جو ہے سن و سال بڑھ چکا ہوگا۔ تو بار بار مطلب ایک دفعہ پڑھنے پہ قناعت نہ کریں کہ ہم نے ایک دفعہ کتاب یہ پڑھ لی بس سرسری طور سے ختم ہو گئے، نہیں، ایسے لوگوں کی کتابوں کو کم سے کم رٹ ڈالیں، یعنی یہاں تک یہ یاد ہو جائے کہ سید مطہری نے یا علامہ جوادی نے یہ بات کو فلاں جگہ پر فلاں پیج پر لکھا ہے۔ اتنی زبردست ہماری جو ہے پکڑ ہونا چاہیے۔ یہ چند نام تھے اور ہم بہت زیادہ مصنفین کے نام نہیں لینا چاہیں گے۔ ایک بات ہم نے کہی کہ جو لوگ ممبر پہ آنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے اندر کیا مطالعے کا شوق پیدا کریں، بغیر پڑھے بغیر تیاری کے ممبر پر نہ آئیں۔ یہ ایک بات ہو گئی کہ مطالعہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عام طور سے بچپنے سے شروع ہوتی ہے کہ جو لوگ، جیسے ہم لوگ کبھی ظالمانہ طالب علمی میں تھے اور جب تیاریاں شروع کی جاتی تھیں تو ہم لوگ جو ہے مجلسوں کو سنا کرتے تھے،
बुज़ुर्गों की सुना करते थे। फिर उस ज़माने में टेप रिकॉर्ड था, छोटी कैसेटें थी, उसको सुना करते थे। तो एक जगह कहा जाए कि अगर मुतालिया है तो वहीं पर हम मस्मुआत को, यानी जो सुनना, बुज़ुर्गों को ज़रूर सुने। एक दफ़ा कि अल्लामा जवादी कैसे पढ़ते थे, बानी तंजीम कैसे पढ़ते थे, या जो और बुज़ुर्ग गुजरे हैं जैसे रशीद तुराबी मरहूम हैं, वो कैसे पढ़ते थे। अगर जिनकी भी बुज़ुर्गों की आज के दौर के नहीं, आज के दौर के जिसे कहा जाए कि खिताबत बहुत कम रह गई है, अब ज़्यादातर जो है वो क्या एक्टिंग ज़्यादा हो रही है। तो आज के दौर में सिर्फ उन अफराद को सुनिए कि जो जिसे कहा जाए कि संजीदा हैं या मतीन हैं और लिबास में हैं, लिबास वालों पे तवज्जो दीजिए। तो एक बात ये हो गई कि मुतालिया किताबों में ज़रूर शामिल करिए, बग़ैर पढ़े ना जाइए। और दूसरी बात यह है कि अपने इस आमादगी में मजलिस की सुनने का भी एक डालिए कि हम बुज़ुर्गों को सुने कि बुज़ुर्ग किस तरीके से मिंबर पे, देखिए मिंबर पे आप अगर किसी भी बुज़ुर्ग को देखेंगे तो ख़ास तौर से यूट्यूब पे मजलिसें हैं, बानी तंजीम की वीडियो की मजलिसें हैं, आपको एक अंदाज़ा होगा कि उन्होंने किस तरीके से फातिहा कहा, इत्मीनान कैसे था उनका। जैसे वो बैठते थे तो अब कि शेरवानी के ऊपर तक सारे बटन बंद होते थे, पैर एकदम बिल्कुल होकर कि बिल्कुल जब इत्मीनान हो जाता था कोई वो नहीं, तो फिर धीरे धीरे किस तरीके से उन्होंने खुतबा शुरू किया, फिर किस तरीके से जो है उन्होंने तमहीद को रखा, आयत कौन सी पढ़ी, उस आयत से क्या तमहीद कैसे बांधी, उस तरीके से फिर आगे की बहसों में किस तरीके से दाखिल हुए। तो ये दो बातें जो आप ज़रूर इसको जो है एक मुतालिया, और दूसरा ये कि बुज़ुर्गों को ज़रूर सुनिए, कि बार बार एक आदत डालिए कि सुनते रहें और कि वो किस तरीके से पढ़ते थे। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ज़ाकिरी में। और एक दो बातें और हैं, वो ये कि हम में से हर आदमी ये होता है कि अगर 5-10 साल मजलिस से हमने पढ़ ली और हमने मतलब अगर किसी बड़े मेंबर पे जो है जाकर अशरा पढ़ लिया तो हम सब अपने को आलिम समझने लगते हैं या आलिमा समझने लगते हैं। अब तो यूट्यूब पर लोग अपने को खुद ही आलिमा लिख रहे हैं और आलिम लिख रहे हैं, और जैसा कि खुद हदीस में आया है कि जो इंसान ये लिखने लगे वो सबसे बड़ा जाहिल, यानी इल्म की आखिरी बात वो बताई गई है कि जब इंसान उस मंजिल में पहुंचता है कि हमें कुछ पता ही नहीं, तब वो आलिम होता है। तो ये जो आलिमा और ये है, इससे इन अलकाबात से अपने को मुस्तस्ना और अलग रखिएगा। सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि जो दो बातें हमने की उसके अलावा ये कि जो ज़ाकिरी करने का जिनको शौक़ है वो ये कि सबसे पहले हम दीन के तालिब इल्म बने, दीन हम सीखें, और दीन जब हम सीख लेंगे तभी हम उस दीन को मिंबर के ज़रिए जो है सामने आवाम के मुंतकिल कर सकेंगे। जब हमने दीन सीखा ही नहीं है तो हम बताएंगे क्या सामने वाले को। तो पहली बात यह है कि हम सबसे पहले कोशिश ये करें कि दीन के तालिब इल्म बने, दीन के तालिब इल्म बने, और दीन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि दीन में है ही क्या। एक छोटी सी एक बात कह रहे हैं कि जो मर्ज तकलीद बनता है वो खुद बहुत बड़ा इकनॉमिक्स का माहिर होता है, और अगर क्यों ना होगा, क्यों, इसलिए कि मीरास के मसाइल को बयान करता है, वो जो है कफ़ारे बताता है। मीरास का मसला ऐसा होता है कि हर आदमी नहीं बता सकता है। हमारे कहता है कि दीन के इल्म में रखा ही क्या है, लेकिन जब मीरास का मसला होता है तो मर्ज तकलीद किस तरीके से बैठ के निकालता है कि ऐसे होगा ऐसा होगा, तो खुद एक वो माहिर होता है, या खुमुस का यह है। तो ये बात बहुत जल्दी से कि हम दीन के तालिब इल्म बने, सबसे पहले दीन को सीखने की कोशिश करें और सीख कर अपने अंदर पैबस्त उतारने की कोशिश करें। एक बात हो गई। और जल्दी जल्दी दूसरी बात यह है कि दीन के तालिब इल्म जब बन जाए, यानी हमें यह मालूम हो गया कि दीन ये है और दीन ये कहता है, तो फिर हम खुद ये कोशिश करें कि अपना तज़किया नफ्स करें, यानी जो दीन हमने सीखा है उसको हम अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, और यह ना रहे कि सिर्फ दीन सीख लिया और उसके बाद फिर कोई बात नहीं रहेगी। जो दीन सीखा है पहले उसको अपने अंदर उतारें। अब जब हम मिंबर पे गए हैं तो हम अब अगर मिंबर पे जाकर बताएंगे कि दीन ये है, तो हम उस रास्ते को अच्छी तरीके से सामने वाले को बता सकेंगे कि जिस रास्ते को हमने खुद तय किया होगा। हमारे यहाँ मुसीबत ये होती है कि हम सब जब मिंबर पे आते हैं और उस जिस रास्ते को हमने तय नहीं किया है उस रास्ते को आवाम को बताते हैं कि आप ये करिए, आप ये करिए, आपके यहाँ खुलूस होना चाहिए, आपके यहाँ ये होना चाहिए, आपके यहाँ ये होना चाहिए। पहले हम ये कोशिश करें कि जिस रास्ते को हम आवाम को, सामने वाले को बताना चाह रहे हैं, उस रास्ते को हम खुद तय कर लें। हम बताना चाह रहे हैं कि सैयदुल शुहदा का रास्ता ये था,
तो जब तक हमने उस रास्ते को तय नहीं किया होगा या अइम्मा के रास्ते को हमने जाना नहीं होगा, तब तक हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि उनके रास्ते में चलने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, परेशानी क्या आती हैं। हम सब मिंबर पे जाके ये बताते हैं कि मकसद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये था, करबला वालों का मकसद ये था। पहले हम खुद उस मकसद को अपने अंदर उतारें, समझें, और जब तक हम उस मकसद को खुद अपने अंदर नहीं हासिल करेंगे या उस रास्ते को जब तक हम खुद तय नहीं करेंगे, तो हम सामने वाले को बता ही नहीं पाएंगे कि इमाम हुसैन का मकसद क्या था या हमारे अइम्मा का रास्ता क्या था। तो 2-3 बातें हमने कही कि सबसे पहले हम अगर इस जिम्मेदारी को, समाजी तौर से कोई भी जिम्मेदारी को हम कबूल करते हैं, तो हम दीन के तालिब इल्म बने, दीन को सीखें, फिर दीन को सीखने के बाद अपना तज़किया नफ्स करें। इसमें तज़किये में सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि हमारी ज़बान पाक होना चाहिए। जब तक हमारी ज़बान पाक नहीं होगी तब तक उसमें असर नहीं पैदा होगा। जैसे कि हम ये कहते हैं कि ज़बान में भी कुछ लोगों के असर होता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ ज़बानें ऐसी होती हैं जो बेअसर होती हैं, उनके ज़बानों का कोई असर नहीं होता। उसकी वजह यही होती है कि वो जो बयान करते हैं वो खुद उन्होंने उस रास्ते को तय नहीं किया होता है। तो सबसे पहले हम ज़बान से मामले को शुरू करें और दिल और ज़मीर और इन सब चीज़ों को इस्लाह और पाकीज़गी करें। तो हम उस रास्ते को तय कर लें कि जिस रास्ते को हमें आवाम को और अपने सामने बैठने वालों को बताना है। अच्छा, ये बातें हो गई, और इसके अलावा जो ज़ाकिरात जो हैं उनसे 1-2 बातें स्पेशल तौर से हम कहना चाहेंगे कि जब भी मिंबर पे आएँ, वो अगरचे वो ख़वातीन के दरमियान आ रही हैं और कोई ये कह सकता है कि भाई इसमें इस वक्त हिजाब की ज़रूरत नहीं है, आप तो ख़वातीन के अंदर पड़ रही हैं, लेकिन चूँकि ज़माना तरक्की कर गया है और हर आदमी जो है थोड़ी सी क्लिप बना लेता है किसी की या वीडियो बना लेता है और बाद में उसको अपलोड कर देता है। तो देखिए, हमने कहा ना कि हम अमली तौर से बताना चाहते हैं कि दीन क्या है। तो हम जब मिंबर पे बैठें, चाहे वो ख़वातीन का मजमा हो, लेकिन हम उस मिंबर पे भी बैठने के बाद पूरे हिजाब की पाबंदी आप करें। हम इस तरीके से बैठें कि हमारा मतलब इस तरीके से हिजाब हो कि ख़वातीन का मजमा है लेकिन चेहरा सिर्फ खुला हुआ, जो वाजिब पर्दा है वो होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से कि चादर से पूरा जिस्म बंद हो, बाद में कोई ऐसा ना हो कि कोई नामहरम की नज़र पड़े। तो इस चीज़ की रियायत बहुत ज़रूरी है। अगरचे ये हो सकता है कहे कोई कि भाई औरतों में मजलिस हो रही है, इस वक्त क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, आप अमली तौर से अगर सिखाना चाहते हैं तो अमली तौर से सिखाने के लिए आपको अमल करके दिखलाना होगा कि इस तरीके से पर्दा होता है और हिजाब होता है। दूसरी बात यह है कि मिंबर पे जाने से पहले बावुज़ू पाकीज़गी के साथ कोशिश करें कि वुज़ू करके जाएं। जो भी जिक्र में जाना, देखिए हर नेक काम का एक ना एक असर होता है। जब इंसान बावुज़ू जाएगा मिंबर के ऊपर तो जाहिर सी बात है, बावुज़ू है, पाकीज़ा है, तो बहरहाल उसकी बातों में असर होगा, लोग उसकी बातों को सुनेंगे। और मिंबर पे जाने से पहले अगर कोई अच्छी बात हम पेश करना चाहते हैं, कोई चीज़ बताना चाहते हैं कि आज हम आपके इस मजलिस में हम ये कुछ नई बात जो हमने समझी है उसको बताना चाहते हैं, या कोई बात हम पेश करना चाहते हैं, तो जब नमाज 2 रकात अगर मुमकिन हो तो नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने से पहले परवरदिगार और अइम्मा से ये दुआ करें कि परवरदिगार और अइम्मा हमारी मदद करें और हमारी ज़बान में असर हो, ताकि हम उस बात को अपने आवाम और पब्लिक तक जो है वो पहुंचा सकें। अब ये तो बातें ऐसी थी कि जो हमने कहीं से खुद सी नोट की किताबों से या जो कुछ लोगों से, बुज़ुर्गों से सुनी थी, और होता यही था कि हमारा कि जब हम लोग इसमें बुरा मान जाते हैं जब कोई बुज़ुर्ग इस्लाह करता है, और है अगर बुज़ुर्ग बैठा हो मजलिस में और कोई खातून ने मजलिस पढ़ी हो, बाद में कहे कि भाई आपने मिसाल के तौर पर मसाइब ऐसे पढ़ी है, इस्लाह वाली बात आपने की या मिसाल वाली ऐसी, तो हम लोग बुरा, लेकिन नहीं, अगर कोई बुज़ुर्ग इस्लाह कभी भी करे तो उसको खंदा पेशानी के साथ कबूल करिए, वो आपके आगे बढ़ने में हमेशा जो है वो आपको कामयाबी की मंजिल तो ले जाएगा, हमेशा आपको आगे तक वो बढ़ाएगी। तो सबसे पहले जो बात हमने कही और उसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं वो ये कि किताब पढ़ने की आदत डालें, जो इत्तेफाक से हमारे माशरे में तकरीबन ख़त्म हो गया है कि हम तैयारी नहीं करते हैं। जब हम तैयारी करके जाएंगे और जब तैयारी करके जाएंगे तो देखें कि अगर किसी भी चीज़ में हमारे यहाँ कमी होगी, अगर आपको मजलिस पढ़ने के लिए किसी ने 3 बजे बुलाया है और मिसाल के तौर पे आप खातून खाना हैं
घर में बच्चा बीमार है या शौहर की कोई परेशानी है और आपको एकदम से मजलिस पढ़ने के लिए बुला दिया जाए तो आपका जहन मुंतशिर होता है, आप उस तरीके से जो है मजलिस को नहीं पढ़ सकेंगे। तो उसमें सबसे अच्छी बात है जो गुज़िश्ता के उलमा भी करते थे वो ये कि मजलिसों को बाकायदा इशारे उसके जो हैं, जो उसके पॉइंट्स होते थे उनको लिख लेते थे ताकि ऐन मौके पर जो है वो बातें जहनों में रहें। तो जो मजलिसों में कभी भी जाइए तो पूरी तैयारी के लिए, और जो हमको हमारे बरादर बुजुर्ग मौलाना सफ़ी हैदर साहब ने 1-2 बातें बताई थी, अगर आप लोग नोट कर रहे हों तो नोट कर लीजिए कि मजलिस पढ़ने में, तकरीर करने में और मजलिस और तकरीर में बड़ा फ़र्क होता है। मजलिस पढ़ना आमतौर से जो होता है वो आसान होता है, लेकिन जब तकरीर के लिए कहा जाता है तो, और ख़ास तौर से अगर आपको टॉपिक दिया गया हो, किसी ने फरमाइश की हो कि इस पर पढ़ना है और 10 मिनट बोलना है, तो ज़रा मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक क्रीम निकालना होती है। मजलिस एक दूध की तरह होती है कि दूध पी लिया, लेकिन उसमें से जो है क्रीम निकालना है तो वो एक मुश्किल काम होता है। तो उन्होंने बताया था कि जब भी मजलिस तकरीर करो या मजलिस करो तो सबसे पहली बात यह है कि आयत का इंतखाब, हदीस का इंतखाब, और उसके बाद अपनी तकरीर में एक मिसाल और मिसाल के साथ कोई वाक़या, इसको ज़रूर शामिल करो। मिसाल वाक़े से ये होता है कि जब मिसाल आदमी देता है तो अगर मिसाल के ऊपर उसका तसल्लुत है, यानी उसने मिसाल को अच्छी तरह समझ रखा, किसी की भी मिसाल है, अपनी है या कहीं से पढ़ी है या कहीं है, तो उससे एक आपको जो आप ज़ोर खिताबत है और एक तेज़ी से आप बोल रही हैं, उसमें अगर आपने मिसाल देना शुरू की है तो आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। मिसाल चूँकि जो है वो तेज़ी से नहीं बयान की जाती, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता समझा के होती। तो एक फ़ायदा तो आपको ये होगा कि आपको थोड़ा सा, जो आप जैसे 10-15 मिनट के बाद थक गई हैं, तो एक आपको थोड़ा सा सुकून मिलेगा, मिसाल के ज़रिए से सहारा मिलेगा। और मिसाल से जो होता है वो जहन जो होते हैं वो करीब हो जाते हैं, बात को समझाने में आसानी होती है। और मिसालों की दुनिया में हम कहें कि बेताज बादशाह जो हैं वो मौलाना गुलाम रशीद साहब, इनकी बानी तंजीम जी, उनकी 7 मजालिस की किताबें तो मुकातिब छाप चुका है, मौजूद हैं, और उसके अलावा तंजीम की तरफ से अपलोड भी की गई हैं। तकरीबन 100 मजलिसें हैं, ऑडियो हैं, अलबत्ता वीडियो कुछ मजलिसें हैं। तो उनकी मिसालों को ज़रूर आप जो है एक दफ़ा सुनिए और अपने बयान में शामिल करिए। और उसके बाद हमने कहा था कि मिसाल और मिसाल के साथ वाक़यात में ये होता है कि वाक़या किसी भी इमाम का मिल गया और आप उसमें देखना कि कोई रिज़ल्ट मिल रहा है, कोई नतीजा मिल रहा है, तो उस वाक़े को भी उसमें किसी दास्तान को, वाक़यात को शामिल करिए। आमतौर से अब हमारे यहाँ ये हो रहा है कि खिताबत इस तरफ जा रही है कि हम सब जो है ख्वाब बहुत बताए जा रहे हैं कि, या अमल कोई बताया जा रहा है कि आगे बहजत ने ये बताया था। उससे पहले हमारे अइम्मा बता चुके थे, उससे हम ये बताते हैं कि बल्कि जवादी तबरेज़ी साहब ने ये बताया है, या आगे अल्लामा तबातबाई ये कहते थे। भाई उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अगर बताया होता तो शायद ज़्यादा बेहतर होता। अब वो बाद में किताबें पर नहीं कि उन्होंने ऐसा बताया था वैसा बताया था, तो ये सब तो हमारे अइम्मा बता गए थे, उन्हीं अइम्मा ही से आगे बहजत ने लिया होगा। तो हम सीधे सीधे उस सोर्स की तरफ क्यों ना जाएँ जो सोर्स हमारे पास मौजूद है। तो ये 2-3 बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश कर दी। और बस एक बात अभी जहन में आई कि इदारतुल मकातिब से ये काम हो सकता है कि ये जो ज़ाकिरीन और ज़ाकिरात के लिए एक तरबियत का एक ऐसी लेक्चर 45-45 मिनट के, अगर 14 या 15 या 14 या 12 मुख्तलिफ ज़ाकिरीन के बना लिए जाएँ, तो उससे जो है आइंदा जो लोग आना चाहते हैं मेंबर को, उनको बड़ी कि हम जैसे किसी को मदऊ करें जिसने 40-45 साल 50 साल तक इस खिदमत को अंजाम दिया है, तो वो आके एक लेक्चर तलबा में दें और उसकी रिकॉर्डिंग हो और वो जैसे बताएं कि ये होता है, ऐसे से होता है, तैयारी ऐसे करना चाहिए, कभी कभी तुम्हारे साथ ऐसा होगा, आवाम का रवैया ऐसा होगा, मेज़बान का ऐसा होगा। ये सब तजुर्बे जो हैं अगर वो बता देंगे तो ये 12 या 14 सीरीज़ अगर बन जाएंगी तो एक इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम होगा। कि देखिए ज़ाकिरी का मतलब ये हो गया है कि इस वक्त हर आदमी मेंबर बिल्कुल आज़ाद है और हर आदमी चाह रहा है, लेकिन अगर किसी को बात आ गई दीनी तहरीक दीदारी की तरफ से तो इंशाअल्लाह वो कारामत होगी। तो बस इतनी कुछ बातें थी जो आपकी खिदमत में पेश कर दी। बाकी मुफस्सल गुफ्तगू के लिए आप लोगों से दरख्वास्त की एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात